اگلے دن بارات کے استقبال کے لیے شوہر اور دورانی کے شان بہت ہی خوبصورت بینکویٹ میں انتظام منعقد تھا۔ زہیب، جاذب، جنید بارات کے استقبال کے لیے ساری ارینجمنٹس دیکھ رہے تھے۔ ہال کو بہت خوبصورتی سے سجایا ہوا تھا۔ احمر کی بات پر عمل کرتے ہوئے عورتوں اور مردوں کا الگ انتظام تھا۔ ایک حصے میں مرد حضرات تھے، سمیر کے سینئرز، آفیسر، جونیئر، کولیگ، سب دوست، جاننے والے، رشتہ دار سب موجود تھے، جبکہ دوسری جانب لیڈیز بنی صبری تیار یہاں وہاں گھوم رہی تھی، جبکہ سمیر اور ہمدانی ولا کے بڑے سب انٹرنس پر کھڑے مہمانوں کا گرم جوشی سے استقبال کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں بارات کا شور اٹھا تھا۔ بلیک رنگ کی BMW ایک لائن میں آ کر رکی تھی۔ دورانی مینشن کے افراد اپنی اپنی گاڑیوں سے اترے تھے۔ ان کے اترتے ساتھ آئے گارڈز نے گاڑیوں میں سے ساتھ لائے سامان نکالے تھے، مٹھائیاں، فروٹ، ڈرائی فروٹ کی بہت سی ٹوکریاں، بہت سے تھال جن میں لاتعداد تحائف تھے، وہ لیے اندر بڑے تھے، جبکہ بارات کے آتے صدر رمشا جو کہ ایمان کے پاس برائڈل روم میں تھی فوراً سے نیچے آئی تھی اور شیلا ایمان کے پاس رک گئی تھی۔ جیسے ہی احمر، حسان، زہیب اور یاسر کے ہمراہ اندر آیا، سب کی نظریں اس خوب روح جوان پر جم سی گئی تھی جو بلیک شرمانی میں بھوڑے بال ماتھے پر بکھیرے، سرخ لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے کتنوں کو اپنا دیوانہ بنا گیا تھا۔ وہ لگ ہی اتنا خوبصورت رہا تھا کہ سب ٹکٹکی باندھے اسے دیکھ رہے تھے جب سمیر سے مل رہا تھا۔ لمبا قد، گسرتی جسامت، گہری کالی آنکھوں میں چمک لیے، سفید رنگت، بھوری مونچھیں، بوڑھے ہی ہلکی ہلکی بریڈ، سرخ لب، اس کے نچلے لب کے کنارے پر تل، اس پر بلیک رنگ پہنے وہ بہت ہی خوبصورت اور ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ ہونٹوں پر ایک مسحور کن مسکراہٹ رقصہ تھی، آنکھوں میں فتح کی چمک تھی۔ پرسکون سا ہنستا مسکراتا احمر سمیر کو اس وقت بہت ہی پیارا لگا تھا۔ ایک بار پھر سمیر نے اسے خود میں بھیج لیا تھا، جبکہ احمر نے بھی سمیر کے گرد حصار مضبوط کیا تھا۔ وہ سمیر کے اپنے مولانے کے لیے محبت جانتا تھا، جبھی تو اب وہ بڑے بھائی کا فرض ادا کر رہا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی ٹکر کے تھے۔ وہیں سمیر کو کبھی کبھی اس کی اڑیل کے سامنے جھکنا پڑتا تھا جو اپنی بات سے ٹس سے مس نہ ہوتا تھا۔ اس وقت احمر سمیر کو زہر لگتا تھا، پر جب اس کی بات درست ہوتی تو شہد سے بھی میٹھا لگتا تھا۔ سب گرم جوشی سے ملے تھے، ساتھ آئے مہمانوں کو بھی بڑے اچھے سے ویلکم کیا تھا۔ زرش، مہم، سجر، رمشا سے ملی تھی۔ سب بہت خوش نظر آ رہے تھے، سب کے چہروں پر خوشی سے چمک رہے تھے۔ سمیر، شاہ، سومی، زہیب، جاذب، جنید نے آج وائٹ کلر کی شلوار قمیض پہنے ہوئے تھے، پاؤں میں ایک ہی طرح کے کھسے پہنے ہوئے تھے، مہنگی واچ کلائی پر باندھے، کپ فولڈ کیے، بال جیل سے سیٹ کیے۔ لڑکی والوں کی جانب سے لڑکے انتہا کے پیارے لگ رہے تھے۔ حسب عادت سمیر نے شاہوں کے رواج کے مطابق شال گردن پر ڈال کر مفرل کی طرح دائیں کندھے پر ڈالی ہوئی تھی۔ چھوٹے شاہ نے بھی سیم طریقے سے شال اوڑھ رکھی تھی، جبکہ لڑکے والوں کی جانب سے حسان، برہان، یاسر نے 3 پیس پینٹ کوٹ پہنے ہوئے تھے، بال جل سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ تینوں ہی بلا کے ہینڈسم لگ رہے تھے۔ دونوں جانب کے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کی ٹکر کے تھے۔ سجل، زرش اور شیلا، مہام، رمشا ایک جیسے ڈریس زیب کیے ہوئے تھی۔ انہوں نے شرارے اور لانگ اوپن شرٹس پہنی ہوئی تھی۔ سجل نے مہرون اور زرش نے گولڈن، شیلا نے آف وائٹ، مہم نے اسکائی رنگ اور رمشا نے نارنجی اور ریڈ کلر کے امتیاز کا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ خوبصورت ہیئر سٹائلز بنائے ہوئے تھے، نفاست سے کیے میک اپ میں ہلکی پھلکی جویلری پہنی پریاں لگ رہی تھی۔ احمر سب لڑکوں کے ساتھ مرد حضرات والے حصے کی جانب بڑھا تھا۔ سمیر نے احمر کا سب سے تعارف کروایا تھا۔ کمال صاحب بھی اپنی فیملی کے ہمراہ آئے ہوئے تھے۔ احمر، سمیر، حسان بڑی گرم جوشی سے کمال صاحب سے ملے تھے۔ احمر کے بہت سے آفیسر بھی آئے تھے۔ چیف بھی کچھ دیر کے لیے آیا تھا۔ جن کو نہیں پتا تھا، آرمی یونیفارم میں جوانوں کو دیکھ ان سب کو بھی حسان اور احمر کے بارے میں علم ہو چکا تھا، پر وہ سیکرٹ ایجنٹ ہے، اس بات کا سوائے فیملی کے کسی کو نہیں پتا تھا، نہ ہی وہ بتانا چاہتے تھے۔ کچھ دیر ملنے ملانے کا سلسلہ جاری رہا، پھر ینگ مین کافی اچھا لگ رہا تھا۔ احمر سے وہاں ایک مہمان ملا تھا۔ احمر بھی خوش اخلاقی سے ملا تھا۔ کچھ دیر بعد چیف اور باقی آفیسر نے احمر کے ساتھ بہت سی پکس بنوائی تھی۔ اس کو شادی کی مبارکباد دیتے چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے بی جی کے بلاوے پر سب لیڈیز والے حصے کی جانب آئے تھے۔ ان کے آتے وہاں ہلچل سی مچی تھی۔ سب عورتیں بڑی دیدہ دلیلی سے دولہے صاحب کو نہا رہی تھی، جبکہ وہ کسی کی جانب متوجہ نہ تھا۔ اسے تو بس اپنی مولانی کا انتظار تھا۔ احمد جو اس وقت سجل سے نہیں ملا تھا،
अब जाकर इसके सामने सर झुकाया था। सजल ने मुस्कुरा के इसे बड़ों की तरह ढेर दुआएं दे डाली थी। वह अहमर को अपने साथ लिए स्टेज पर आई थी। इसे खूबसूरती से सजे स्टेज पर रखे सोफे पर बैठाया था। जरीश, रिमशा, महम भी इनकी जानब आ गई थी, जबकि लड़के भी फैमिली की औरतों से मिलते ही स्टेज पर धावा बोल दिया था। समीर को बीजी समरीना बेगम ने रोक लिया था। वो समीर को प्यार देती से ढेरों दुआएं दे रही थी, जिसने माँ बाप के बाद ईमान को कभी कमी महसूस न होने दी थी। आज भी इतने अच्छे से सब कुछ संभाले हुए था। सोमी साहब इन सब के अपने कैमरे में तस्वीर कलेक्ट कर रहा था। जुनेद ने भी सबकी बहुत सी तस्वीर बनाई थी। ड्रोन कैमरे से सबकी मूवी भी बन रही थी। लड़कों की नजरें बार बार भटककर अपनी बीवियों, मनकूहा और फियांसी की जानब उठ रही थी, तो वहीं लड़कियां भी चोर नजरों से अपने अपने शोहरों, मनकूह, फियांसी को देख रही थी। ज़ेब ने शैला की तलाश में निगाहें घुमाई थी। जब ही मोहम्मद जरिश सजल को बताकर बेडरूम की जानब बढ़ी थी। जरिश बेचारी दोनों तरफ हलकान हो रही थी। एक तरफ जान से प्यारी दोस्त और दूसरी जानब भाइयों जैसा देवर। वो सुबह ही ईमान के पास आ गई थी। काफी देर रुकने के बाद वो बारात से कुछ देर पहले दुरानी मेंशन गई थी। घर की बड़ी बहू होने के नाते सारी जिम्मेदारियां इस पर थी, पर वो दोनों तरफ से बराबर रही थी। समरीना बेगम, फवाद साहब दुरानी मेंशन रुके थे, बारात के साथ यहाँ आए थे, जबकि जवाद साहब और मिसिस जवाद, जाज़ब और रिमशा की फैमिली विला में रुके हुए थे। वो जैसे अंदर गई, एक पल को हैरान रह गई। ब्लड रेड कलर के लहंगे में हम रंगा दुपट्टा सलीके से सर पर सेट किए, सुनहरी आंखों को दो आतशा बनाए, नफासों से किए मेकअप पर, लबों पर ब्लड रेड लिपस्टिक जेवरा से लदी पूर पूर सजाए, वो कई आसमान से उतरी हूर लग रही थी। सबसे ज्यादा खूबसूरत इसकी माथा पट्टी नाक में पहनी नथ लग रही थी। कई लम्हे वो महबूस है इसकी हुस्न की मूर्ति को देखता रहा था। वो हमेशा सादगी में रहकर इंतहा की प्यारी लगती थी। आज तैयार होकर इसका रूप ही निराला था। बेसाख्ता दोनों ने माशाल्लाह पढ़ा था। ईमान आईने के सामने कुर्सी पर बैठ नजरें झुकाए हुई थी। जब शैला ने तैयार होने के बाद इसे आईने में देखने को कहा था, वो खुद को यूं देखकर हैरान रह गई थी। फिर अहमर का सोचकर दिल धड़क धड़क कर पागल हो रहा था। न जाने वो पागल दीवाना क्या रिएक्ट करेगा। ईमान जान, तुम इतनी प्यारी प्यारी कोई डोल ही लग रही हो, पता नहीं मेरे देवर का क्या हाल करने वाली हो। जरीश इसके गिर्द बाहों का हाथ डाले इसके गाल पर लब रखकर प्यार से बोली थी, जबकि माँ ने बिना कुछ बोले इसके हाथ पर जोर से चुटकी काटी थी। ओ, तुम तो अपने मियाँ का ही हाल करने वाली हो, मतलब जब वो पास आएगा तो चुटकी काटोगी। जरीश मसनूई सदमे से बोली थी। महम और शैला इसकी बात पर खिलखिला उठी थी, जबकि मान के हाथ पैर फूले हुए थे। कब से वो यही सोच रही थी, ऊपर से जरिश की बातें। ऐसे तुम्हारे मियाँ बेताब निगाहों से तलाश रहे हैं। जरिश ने शैला को ज़ेब का बताया था। वो मुस्कुरा कर फौरन से नीचे चली गई थी, अपने शोहर का दीदार कर सके और करवा भी दे। ईमान, तुम ठीक हो ना? हमने इसे बिल्कुल खामोश पाकर पूछा था। बस घबराहट हो रही है, ईमान रूहानी आवाज में मध्यम से बोली थी। बस मेरी जान, इस मौके पर तो सब लड़कियों को घबराहट होती है, पर तुम कितना परेशान हो रही हो। तुम जिसकी धूलो न हो, वो आज तुम्हें देख कर ही दुनिया भूल जाएगा। इसकी तो परेशानी है। ईमान हल्का फुल्का सा मन मनाई, जिस पर दोनों सुनकर मुस्कुरा उठी थी। ऐसे होना भी चाहिए। मेरा देवर दीवाना है तुम्हारा, आज तो पता नहीं किसकी। जरिश प्लीज। इससे पहले कि वो जुमला मुकम्मल करती, माँ ने नम आवाज में रोका था। अरे मेरी जान, रो क्यों रही हो? जरिश संजीदा सी हुई थी। मुझे डर लग रहा है जरिश। अब के ईमान की आवाज कब कपाई थी। कुछ नहीं होता ना, डर क्यों लग रहा है? वो कोई जिन थोड़ी है। जरिश ने इसे अपने साथ लगाया। दूसरी तरफ से महम ने इनके इर्द गिर्द हसार बांधा था। तभी समरीना बेगम आई थी। चलो लड़की, ईमान को नीचे ले आओ। तेजी से बोलते नजरें ईमान पर पड़ी तो तारीफ किए बिना न रह सकी। समरीना बेगम ने आंखों में लगा काजल छोटी सी उंगली से थोड़ा सा साफ कर कर ईमान के कान के पीछे लगा था। अल्लाह नजरे बस से बचाए मेरे बच्चों को। वो ईमान का मोहब्बत से माथा चुम्मी बोली। इसके सर पर सुर्ख बारीक जालीदार दुपट्टा गिरा दिया और इसे साथ लिए आगे बढ़ी थी। अहमद की पॉजिटिवनेस अब सब अच्छे से वाकिफ थे। दूसरा किसी भी सूरत ईमान का चेहरा छुपाए बगैर नहीं ले जा सकती थी। और जैसे बेडरूम से बाहर निकली, सामने समीर, सोमी, हसान, ज़ेब, जाज़ब और जुनैद खड़े थे। समीर ने आगे बढ़कर ईमान को अपने हसार में लिया था। ईमान की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। बस मेरा बच्चा, हमेशा अपने भाई का सर फखर से बुलंद रखना। जिंदगी में कोई भी गम तुम्हें छू कर न गुजरे। तुम्हारी सारी मुसीबतें मुझसे गुजर जाएं। जिंदगी की किसी मोड़ पर कभी भी तुम खुद को अकेला नहीं पाओगी। तुम्हारा भैया हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरी गुड़िया,
समीर इसे सीने से लगाए खड़ा इसके सर पर लब रखकर बोला था। समीर की आंखों में भी नमी उतर आई थी। जब भी जाज़ब की गोद में सोमी उचकर अपनी फुप्पो के पास हुआ था, घूंघट के ऊपर ही से ईमान के गाल पर लब रखे थे। एक तरफ समीर ईमान को अपने हिसार में लिए हुए था, दूसरी तरफ छोटा शाह अपनी फुप्पो का हाथ पकड़े हुए था, जबकि लड़के सब सुर्ख चुनरी का ईमान के ऊपर साया किए इसके कोने पकड़े आगे बढ़ रहे थे। सुर्ख दुपट्टे के छांव में समीर सोमी के साथ वो छोटे छोटे कदम लेती आगे बढ़ी थी। जैसे ईमान इन सबके हमरा हाल में एंटर हुई, सबकी निगाहें इसकी तरफ उठी थी। अहमद बुरहान के साथ बैठा कोई बात कर रहा था कि नजर सामने उठी और वो पलक झपकना भूल गया। भारी सुर्ख लहंगे में वो इसके लिए पूर पूर सजी इसकी धड़कनें बढ़ा गई थी। अहमद अपनी जगह से उठकर खड़ा हुआ था। जालीदार घूंघट से इसका हल्का हल्का चेहरा नजर आ रहा था। चमकती गोरी रंगत पर सुर्ख दुपट्टे का घूंघट किए अहमद के दिल पर बिजलियां गिरा गई थी। दुपट्टे के हाले में इसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। वो जैसे कदम आगे बढ़ा रही थी, दोनों अतराफ राहदारी बनाए लाइन में खड़ी लड़कियां हाथों में पकड़े फूल ईमान के आगे आगे गिरा रही थी, जिनके ऊपर वो चलती अहमद की जान बढ़ रही थी। ये मंजर इतना खूबसूरत था कि सब हैरानगी से देख रहे थे। साउंड सिस्टम में हल्का हल्का म्यूजिक बज रहा था। अहमद ने अपनी जगह से कदम बढ़ाए थे। आहिस्ता से चलता इनके सामने आकर रुका था। समीर ने ईमान का हाथ अहमद को थमाया था, जब से वो दिलकशी से मुस्कुराकर इसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत कर गया था। समीर ईमान के सर पर हाथ रखकर वहां से निकलकर समरीना बेगम के पास खड़ा हुआ था। अहमद इसीलिए आगे बढ़ा ही था, जब भी सोमी, जाज़ब, ज़हेब, जुनेद, हसन जो के बहन और दोस्त दोनों तरफ बराबर थे, वो तीनों दुपट्टे के कोने सजल, शैला, माम और जरिश को पकड़ाए अहमद और ईमान के सामने कुछ फासले पर बराबर खड़े हुए थे। फ्रंट पर सोमी और बाकी चारों इसके पीछे थे। ईमान और अहमद वहीं रुककर इन्हें देख रहे थे, जो रास्ता रोके मुस्कुरा रहे थे। तभी डीजे ने सॉन्ग प्ले किया था और वो म्यूजिक पर एक जैसे स्टेप लेते सबको हैरान कर गए थे। तारों का चमकता गहना हो, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो। पांचों ने पास खड़ी लड़कियों के हाथ थामी प्लेट से फूल उठाकर इनकी राह में बिछाए थे। ये सब लड़कियों ने जोरदार होटिंग की थी, जबकि अहमद खुलकर मुस्कुराया था। इस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। अब उन्होंने अहमद की जानब इशारा करके दुआ की सूरत हाथ उठाए थे। इनकी परफॉर्मेंस लाजवाब थी। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, इस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। अब वो पांच इन दोनों के इर्द गिर्द घूमते बड़े ही खूबसूरत अंदाज में क्लैपिंग कर रहे थे। ये फूल तुम्हारे जेवर हैं। सोमी इस बोल पर अपनी छोटी सी मुट्ठी में फूल भर के इन दोनों पर फेंके थे। जल्दी से पीछे हुआ था। ये चांद तुम्हारा आईना। हसन ने ऊपर की जानब इशारा करके ईमान के सर पर हाथ रखा था। तुम जब ऐसे शर्माती हो। जाज़ब इन दोनों के सामने आकर उंगली ठोडी पर रखकर लड़की की तरह शर्माने की एक्टिंग की थी कि समीर समेत सबका कहका गूंजा था। जबकि अहमद ने इसे आंखें दिखाई थी तो फट से दूर हुआ था। धूले का धड़कता है सीना। ज़हेब ने इसके बोल पर अहमद के सीने पर हाथ रखकर थपकी दी थी। हर आईने तुमको देखे। जुनेद इस बोल पर अपनी जेब से छोटा सा आईना निकालकर अपने सामने किया और बाल सेट करने लग गया। एक बार फिर सबके कहके गूंजे थे, तुम तो ऐसी शहजादी हो। इस बोल पर सोमी अपनी फुप्पो के करीब आते से लिपट गया था, जबकि ईमान का चेहरा इन सबके प्यार और सलूक से खिल उठा था। इस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। अब समीर अहमद ईमान के पास आए थे। खुशियों के महलों में बैठो, कोई गम ना तुम्हारे पास आए, ना उम्र का पहरा हो तुम पर, मेरे दिल की दुआ ये रंग लाए। गाने के इन बोल पर समीर ने प्यार से एक हाथ ईमान के गाल पर, जबकि दूसरा अहमद के गाल पर रखा था। इनको दुआ दी थी। इस मंजर पर सबकी आंखें नमी तर आई थी। रब हंसता हुआ रखे तुमको, तुम हंसने की आदी हो। इस बोल पर समीर ने ईमान को सीने से लगाया था, जबकि ईमान की आंख से आंसू टूट कर गिरे थे। सब महबूब से बहन भाई का प्यार देख रहे थे। अहमद ने समीर के शाने पर हाथ रखा था, जैसे तसल्ली दी थी कि वो हमेशा अपनी मौलानी को हंसता मुस्कुराता रखेगा। इस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। इन अल्फाज पर वो पांच इनके पास चले आए थे। इनकी बुलाएं लेने लगे थे। सब रोते हुए मुस्कुरा दिए थे। अहमद ईमान का हाथ पकड़े खुद से लगा स्टेज की जाना बढ़ा था, जबकि वो पांचों इनसे आगे इनकी राह में फूल डालते जा रहे थे। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, इस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो। इनके स्टेज तक पहुंचने तक गाना खत्म हुआ था। सबने जोरदार हुटिंग की थी।
लड़कों का डांस बहुत जबरदस्त था। सबने इनको खूब दाद दी थी। अहमद ने ईमान को स्टेज पर चढ़ने पर मुश्किल न हो सबको नजरअंदाज करता अपनी मलानी को गोद में उठा लिया था। ईमान सबके सामने अहमद की बेबाकी पर सुर्ख होती छटपटाई थी, पर वो इस पर गिरफ्त मजबूत करता सबके मजाक शरारते सीटों पर मुस्कुराते इसे यूं ही उठाए सोफे पर बैठाया था। इसके बैठते ईमान जरा सा खिसक कर दूर हुई थी। क्या हुआ? अहमद इसकी हालत का सोचकर निचला लाभ दबाए मासूमी से बोला था। खुद भी इसके साथ बैठकर हाथ में अपना हाथ में जकड़ लिया था। मेरी बिल्ली की अभी से बोलती बंद हो गई है। अहमद जरा झुककर सरगोशी में बोलकर इसकी हालत गैर कर गया था। कुछ ही देर में बीजी और बाकी सब खवातीन ने जरूरी रस्में शुरू की थी। इनके बाद महम, शहला, रिमशा, जरिश ने दूध पिलाई की रस्म के लिए स्टेज पर आई थी। ये तुम दोनों किस खुशी में इनके साथ मिली हुई हो? बुरहान ने जरिश और महम को घूरा था। ईमान हमारी दोस्त है, इसकी खुशी में इस हिसाब से हम दूल्हे की सालियां भी हैं। जरिश ने लंबा चौड़ा जवाब दिया था। इससे पहले कि वहां नोक झोंक मजीद आगे बढ़ती, अहमद ने किस्सा ही तमाम कर दिया था। जेब से नोटों की गड्डी निकाल के इनकी हथेली पर रख दी थी। इसकी जल्दबाजी पर सब मुस्कुराए बिना न रह सके थे। कुछ देर मिलने मिलाने का सिलसिला जारी रहा था। फैमिली की लड़कियां लड़कों ने अहमद ईमान को काफी तंग किया था। मायने खेज जुमले कसे थे। इसके बाद खाने का दौर चला था। तभी अहमद, ईमान, हसन और जाजम ने बहुत ही पोज बनवा कर इन दोनों की तस्वीर बनाई थी। ईमान की हालत के पेश नजर अहमद ने इसके बाद से कोई भी मायने खेज जुमला नहीं बोला था। पिक्स बनवाते हुए भी वो ईमान की झिझक और इसके सरापे में कपकपाहट देख चुका था। दोनों के दिल आज अलग ही ले पर धड़क रहे थे। अहमद जल्द अज जल्द अपनी मौलानी को इस शोर शराबे से दूर ले जाना चाहता था। तभी इसने पास आते समीर से रुखसती का कहा था। कुछ देर बाद ही समीर ने ईमान को करान पाके साए तले अहमद के साथ रुखसत कर दिया था। रुखसती के वक्त ईमान, समीर, सजल, सोमी से मिलकर खूब रोई थी। वहीं समीर और बाकी सबकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। समीर को अहमद से कहने की जरूरत ना पड़ी थी कि वो इसकी बहन को हमेशा खुश रखेगा। ये बात समीर बाखूबी जानता था। जरिश, महम और बीजी ने ईमान को अहमद के साथ गाड़ी में बैठाया था। इसके बैठते ही अहमद ने गाड़ी स्टार्ट की और ईमान को लेकर किसी हवा के झोंकी की तरह फुल स्पीड से वहां से निकला था। पीछे दुरानी फैमिली इन सबसे मिलकर अपनी अपनी गाड़ी में सवार दुरानी मेंशन की तरफ गामजन हुए थे। गाड़ी में मुकम्मल खामोशी थी। ईमान का आगे सोच सोच कर ही दिल बैठा जा रहा था, जबकि अहमद पुरसकून सा ड्राइव कर रहा था। वो इसके साथ बैठी घबराहट के मारे उंगलियां मरोड़ रही थी। अहमद इसकी हरकत पर नजर रखे हुआ था। तभी कुछ देर के बाद उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। ईमान जो ख्यालों में गुम थी, हड़बड़ाकर होश में आई थी। इसकी तरफ देखा था, जो कि अब उतर कर इसकी जानब आ रहा था। अहमद ने गाड़ी का दरवाजा खोला, इसे देखा जब तकरीबन अपने हाथों को लाल कर चुकी थी। इसने हल्के से आगे झुककर बगैर कुछ समझने का मौका दिए ईमान को अपनी बाहों में भरा था। अहमद इसे बाहों में उठाए अंदर की जानब बढ़ा था। वो इसे अपने जंगल वाले घर ले आया था। इसे मुलानी के साथ तन्हाई चाहिए थी। अपनी बीवी के साथ कुछ वक्त अकेले गुजारना चाहता था। जैसे वो अंदर आया, घूंघट की ओर से ईमान इस घर को देखकर हैरान हुई, जिसका नक्शा ही बदला हुआ था। पूरा महलमा छोटा सा घर सुर्ख और सफेद फूलों से सजा हुआ था। कोई ऐसा हिस्सा न था जहाँ पर फूल मौजूद न हो। वो मबहूसा ये सब सजावट देखती गई, जबकि अहमद अपनी मुलानी को अहमद के गिर्द हसार बांधे उसकी जज्बात को बढ़ा गई थी। तभी उसे लिए अपने कमरे की जानब बढ़ा था। दोनों की धड़कनें हद दर्जा बढ़ी हुई थी। मुझे नहीं जाना अंदर। इससे पहले कि अहमद डोर ओपन करता, इसे ईमान की हल्की सी आवाज आई थी। जबकि अहमद ने झुककर इसे देखा, जिसके सीने पर सर टिकाए घबराई हुई सी लग रही थी। अच्छा, तो फिर रात इधर ही गुजारनी है क्या? अहमद सरगोशी में बोला था। इसकी गर्म सांसें ईमान को अपने चेहरे पर महसूस हुई थी। बेसाख्ता इसने नाम में सर हिलाया था कि अहमद मुस्कुराया था। पांव से दरवाजा धकेल कर अंदर आया था। कमरे में कदम रखते दोनों की धड़कनें मुंतशिर हुई थी। पूरा रूम गुलाब और मोतियों के फूलों से सजा हुआ था। रोशनी के नाम पर कैंडल्स जल रही थी। बेड पर फूलों से हार्ट शेप बना हुआ था। इर्द गिर्द सुर्ख सफेद जालीदार पर्दे लगे हुए थे, जिनके ऊपर गुलाब और मोती के फूलों की लड़ियां लटक रही थी। पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था। अहमद ने जज्बात पर काबू पाते ईमान को बेड पर बिठाया था। ईमान खुद में सिमटती चेहरा मजीद झुका गई थी। दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने के दर पर था। अहमद ने एक नजर इस पर डालकर अपनी शेरवानी के बटन खोले, इसे निकालकर दूर सोफे पर उछाल दिया था, जो कि फूलों से भरा हुआ था। वो वार्डरोब की जानब बढ़ा, अपना ट्राउजर निकालकर वॉशरूम में बंद हो गया। इसके जाते ही ईमान ने अपनी रुकी हुई सांसें बहाल की थी।
آگے کا سوچ کر پھر سے گھبراہٹ طاری ہونے لگی تھی۔